नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार सर, नमस्कार, वंदे मातरम। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। So the Prime Minister, Mr. Modi, is in New York and at the moment he is doing yoga. Isn't that wonderful? Absolutely wonderful. No other Prime Minister has done it before. Well, as far as Mr. Modi is concerned, in the last 9 years, you can always point out to quite a few things which nobody's ever done before, which Mr. Modi has done. And that is amazing, really and truly. Of course, as far as the Congress is concerned, Congress has not missed out a single opportunity to try and make fun of Mr. Modi. We'll of course talk about that during the course of the show as well. However, by this evening, I think Mr. Modi will be in Washington, where he'll be at a private dinner with the Bidens in the White House. The Biden family, of course, is under a bit of pressure, considering the fact that Hunter Biden has pleaded guilty to 3 charges. No jail time, of course, only probation. And the Prime Minister will then address the joint houses of the US Congress. Isn't that wonderful? Fantastic, as you said. For the second time. This is, yes, the second time. Now, these are great achievements for India. I mean, we are having a international presence and the Prime Minister leads the way. Oh, yeah. He is among the few leaders, you can say, who has repeated himself continuously in various world platforms. That's right. You talk about UN, you talk about US, you talk about various other places, wherever he is the only person among few. The other one, the Chinese premier, and you can say Mr. Putin. No, but as far as addressing the joint houses of the US Congress is concerned, he happens to be only the 4th world leader. Exactly. Who's going to be addressing the joint houses of the US Congress more than once. Apart from, I mean, he happens to be the 4th. After Winston Churchill, Nelson Mandela, Vladimir Zelensky, and now, of course, Mr. Narendra Modi. And that's wonderful. But as the Congress says, hey, what about my LPG cylinder? This is fine. When are you going to sell my LPG cylinder for just 450 rupees? Now, it all depends how everybody manages their campaign. Apart from national security, nationalism and all these things, I think if he takes the cylinder the right way, if he can correct the error in the cylinder, you don't have a challenge at all. Pradeep, they are being very stubborn. You know all the Congress spokespersons who've been here, all the BJP spokespersons who've been here, all the BJP leaders who've been here, they're being very, very stubborn and they're being very custard about it. We will not give freebies. Well, then you've got another Karnataka facing you in just about every other state. Yesterday we were discussing, you're already giving freebies. Yes, you are. 80 crore लोगों को आप अगर मुफ्त के राशन दे रहे हो, what is that? मुफ्त के राशन is freebies. If you are given शौचालय 12 करोड़ घर में अगर शौचालय provide कर रहे हो, that is freebie. That's different. That's welfare. But this is also part of welfare. I mean, how can you differentiate freebies? This is freebies only, if you see. Right, but we'll talk about that when we have the Congress and the BJP spokesperson with us. But at the moment, we have a very, very distinguished guest indeed, a gentleman who's made waves, who's possibly had the most successful film of the year, the Kerala Story, the director, the distinguished, remarkable and brilliant Mr. Sudipto Sen with us. Mr. Sen, very good evening, sir. Good evening, sir. Namaskar, namaskar, Vande Mataram. This is Rajiv Bajaj here, along with Advocate Pradeep Nambiar ji, and you are welcome on Nation Now. Great pleasure meeting you. I've wanted to meet you for a long, long time. Thank you so much, sir. Sir, आप ये बताएं, आपके ऊपर इतने अटैक्स हो रहे हैं, मतलब माशाल्लाह जबरदस्त. You must be feeling great about yourself. I mean, the whole world, just about the entire left liberal universe is out there focused on let's get this man. How dare he do this? सर ऐसे था पहले, लेकिन अभी नहीं है. अभी नहीं है. पहले जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुई थी, ट्रेलर रिलीज होने के मतलब फिल्म रिलीज होने की 10 दिन पहले ट्रेलर रिलीज हुई थी जी. तो ट्रेलर रिलीज होने के बाद से लेकर फिल्म की पहला 4-5 दिन तक बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, बहुत ज्यादा गालियां मिली, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली. लेकिन as the shows got to progress and people started watching the film, तो लोगों को और कोई शिकायत नहीं था. अगर शिकायत होता तो इतने बड़ी संख्या में फिल्म लोग नहीं देखते.
इतनी तो बड़ी संख्या, अरे साहब क्या बात करते हो। हमने सारे क्रिटिसिज्म का जवाब दे दिया, और जो नंबर गेम था, जो प्रोपेगेंडा करके कुछ बातें यूज किया जा रहा था, वो सारे धीरे धीरे चला गया। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक लड़की 10 दिन से केरला से मुझे गाली दे रहे थे ट्विटर में, वो पब्लिक ट्विटर पेज में है मेरा, लेकिन फिल्म देखने के बाद बोले कि भैया आई एम रियली सॉरी, शी यूज द वर्ड भैया, भैया आई एम रियली सॉरी दैट I misunderstood the film. It is actually, you did actually the service to my religion, that is Islam, that you have actually showed that how my religion is being misused by the terrorists. My film has nothing to do with any religion. My film is actually on terrorism. Yeah, but you know, earlier during the, when you showed your documentary in JNU, you were actually physically attacked as well. Right. What was that? मतलब आपके ऊपर physical attack? यार ये क्या है? हाँ, ये तो अजीबोगरीब मसला है। भाई साहब, बजाज साहब, एक बड़ी मजेदार चीज है हमारे देश में जी। एक लेफ्ट लिबरल लोग बोलते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजियन नहीं होते हैं। जी। अच्छी बात है। मैं जब टेररिज्म की बात करने गए तो ये लोग बोला कि आप इस्लाम को गाली दे रहे हैं। तो ये डाइकोटोमस जो आइडियोलॉजी है ना, एक तरफ बोलते हैं टेररिज्म का कोई रिलीजियन नहीं है, एक तरफ जब टेररिज्म की बात करो तो वो लोग रिलीजियन लेके आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की जो एक इस मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स जो था, जो माइनॉरिटी अपीसमेंट वाली पॉलिटिक्स था, मेरी फिल्म ने उनकी ये बलून की हवा निकाल दी है। अब इस देश में जो पिछले 70-75 साल से चल रहा था अपीसमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिमों को डेवलपमेंट होने ना देना, मुस्लिमों को, जैसे केरल में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलने के लिए, बिकॉज आई एम वर्किंग देयर ऑन फॉर लास्ट 8 years। केरल में मुस्लिम वोट जिसको जाएगा वो पावर में आएगा। सो पिनारी विजयन, आज जो सीपीएम को आजकल मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, तो सीपीएम पावर में है। आप डाइकोटोमी देखिए, 2010 में जब वीएस अच्युतानंदन बोलते हैं कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट में बदल जाएगा, तब पिनारी विजयन पॉलिट ब्यूरो मेंबर थे, वो उनको खुले दिल से सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं हाँ ये सही बात है। आज बिल्कुल ऑपोजिट बातें कर रहे थे जब मेरी फिल्म रिलीज हुई कि मैं फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया, मैं प्रोपेगेंडा किया। अरे बाबा, यही बात तो 15 साल पहले आप बोल रहे थे जो मैं आज बोला। लेकिन सुदीप्तो सेन साहब ये बताएं, जो मैं गलत बात बोला, ये एक वर्ड भी उन्होंने नहीं बोल पाए, इसलिए केरल में फिल्म सुपर हिट है मेरा। बजाज साहब, सर पूरे दुनिया में सुपर हिट है, पूरे हिंदुस्तान में हर एक ने देखी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। लेकिन सुदीप्तो सेन साहब, उसके बाद आपकी जो अगली फिल्म आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। यू मेड अ फिल्म ऑन आवर फॉर्मर बॉस, बाय द वे। बोथ प्रदीप जी एंड आई वर इन सहारा, इंसिडेंटली। सहारा वो मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगले साल किया है। मैं अभी और एक फिल्म बनाने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगा। वंडरफुल वंडरफुल, वी विल टॉक अबाउट दैट टू इन जस्ट अ व्हाइल। लेकिन उसके पहले जो भी यहाँ पर आपके बरखिलाफ, यानी कांग्रेस का जो भी स्पोक्सपर्सन आता है, जो भी आता है, वो ये कहता है देखिए इन्होंने स्टार्ट किया, 32,000 लड़कियां जो हैं वो उधर चली गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, फिर आखिर में आकर के 3 पर आ गए और फिर उनको ये डिस्क्लेमर देना पड़ा कि दिस इज फिक्टिशियस। ये जरा इसके बारे में जरा बताएं सर प्लीज। इसमें एक तो मैं और मेरी प्रोड्यूसर विपुल जी ने 5 जून को एक वीडियो, 17 मिनट की वीडियो रिलीज की है, जो वीडियो शायद बजाज साहब आपने देखा है। जी देखा। एकदम 32,000 की एक करके मैथमेटिक्स हम लोगों ने दे चुके। तो मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ। प्रॉब्लम इन लोगों का क्या है कि हमें डिस्क्रेडिट करना है, किसी भी हालत पे डिस्क्रेडिट करने की उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो अभी 32,000 की जगह अगर 31,790 होता या 33,110 होता तो क्या फर्क पड़ जाता जी। इस देश में जो टेरर नेटवर्क काम कर रहा है उत्तरी केरला की 4 डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में बात करें ना। मेरे पास सारे स्टैटिस्टिक्स है, आप मेरे साथ बात करिए। सेंसर बोर्ड के पागल है क्या? 2 महीना मेरी सारे डॉक्यूमेंट लेके, फिल्म लेके, एक पेज हमने सेंसर बोर्ड को 3 घंटे का टेस्टिमोनियल दिए, कम से कम 200 पेज की रिसर्च वर्क हमने सेंसर बोर्ड को दिए। अब सेंसर बोर्ड पागल है क्या कि इतने दिन देखने के बाद अप्रूव करता है? जो डिस्क्लेमर आया
मैं डिस्क्लेमर के बारे में नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो कानूनन, क्योंकि वो फिल्म की फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम के बीच में नहीं होता है जी। वो पहले होता है या एंड में होता है। दैट मीन्स मेरी फिल्म से एक भी फ्रेम काटा नहीं गया। That's right. That is the vindication of the truth I am trying to tell. Wonderful. But you must be feeling absolutely wonderful considering the amount of support. Absolutely, sir. अभी तक मेरी स्टैटिस्टिक्स में 3 करोड़ 40 लाख लोग ऑफिशियली ये फिल्म हमारी देश में देख चुके हैं। वाह, 3 करोड़ 40 लाख। Yes, this is the second highest number after RRR. So I think I am humbled. I come from a very very humble background from a North Bengal Assam border जगह से, असम बंगाल बॉर्डर की से आता हूँ। जलपाईगुड़ी पिछले 8 साल से मैं केरल में काम कर रहा था। मुझे लगता है उन लड़कियों ने जिन्होंने मुझे इंस्पायर की है पिछले 8 साल में ये फिल्म बनाने के लिए, जो लड़कियों ने आए थे, आपने देखा, आपके थैंक यू सो मच that you have given so much of focus to them. The 26 girls came from Kerala to tell that this is our story. This film is our story. Each and every frame telling the truth. सर मैंने इन लोगों को 3-3 रात 4-4 रात भूखे रहते हुए देखा, रोते हुए देखा रास्ते की कोने में बैठ के। तो मुझे लगता है I don't care about, I'm not much bothered about the criticism. So why are we closing our eyes to this? मेरे कहना है कि हम आंखें बंद क्यों कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम है साहब, समस्या सामने है। अरे समस्या का समाधान निकालो यार, मतलब ये क्या है? मुझे डिस्क्रेडिट करके ये सब्जेक्ट के बारे में आंख बंद कर लेने से, जो ऑस्ट्रिच की कहानी जानते हैं ना, वो ऑस्ट्रिच जो रेत में अपना सर घुसा के लगता है कि दुनिया उनको देख नहीं रहा है, मुझे हमारी देश की पॉलिटिशियंस को ऐसे लगता है। दे आर लाइक द ऑस्ट्रिच। Sayyid Saab, you know, Sayyid Saab, the Muslim leaders, especially the Muslim leaders and the Congress leaders, they say you are anti-Islam, though you are anti-conversion and anti-terror. The most, ये तो है ही, but the most thing that affect them is that Prime Minister Modi promoted your picture. They said, देखिए Prime Minister का काम है, and then they connected to the Karnataka elections, they connected to Hindutva, the Hindutva ideology, and Mr. Sen is promoting this particular Hindutva ideology from quite some time. They said, Bajaj Saab ने 2018 का इंसिडेंस किया, JNU में जो आप अटैक, you received the best film award for that. But even then, they say you were by heart, in your heart, you are a core Hindutva person promoting the ideology of the BJP and the RSS. Sir. सर मैं मेरी बड़ी सिंपल आंसर है। ये फिल्म की, अगर मेरी फिल्म की लिस्ट देखेंगे ना, कहाँ से कितने फुटफॉल हुई है। मेरी फिल्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहाँ है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड। कहीं पे भी बीजेपी आरएसएस का गवर्नमेंट नहीं है सर। नंबर 1। नंबर 2, ये जो क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर था, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, जब हमारी वो 17 मिनट की वीडियो मैं और मेरी प्रोड्यूसर ने जारी किए, एक भी पॉलिटिशियन जो 1 करोड़ का दावा कर रहे थे, 10 करोड़ का दावा कर रहे थे, इंक्लूडिंग द रेस्पेक्टेबल शशि थरूर जी, ये लोग आए नहीं ये बात करने के लिए। मैंने बोला था ममता बनर्जी को क्लियर, मैं कलकत्ता जाके बोल के आए थे कि दीदी हमारे साथ बैठ के फिल्म देखिए, मैं आपके साथ बैठ के देखूंगा, अगर आपको लगे कि इस फिल्म में कोई भी ऑब्जेक्शनेबल झूठ है, आई स्टैंड बाय, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैं सामने खड़ा हूं। मैं गया था कलकत्ता, लेकिन क्या करूं, मतलब अगर आपके दिमाग में पॉलिटिक्स भरा है, आपको मुस्लिम वोट चाहिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मेरे लिए बीजेपी आरएसएस या कांग्रेस कोई मायने नहीं रखता है। वो 26 लड़की जो बॉम्बे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे जी, वो लड़की जिसकी माँ आज भी रोई जा रही है, जिस लड़की अभी अफगानिस्तान जेल में है, वो लड़की जिसकी बच्ची को, जिसकी माँ बाप की से गोद से उनकी बेटी को छीन लिया गया और खुदकुशी की, और हमारे कैमरा के सामने आके बोलती है मुझे जस्टिस नहीं मिला, सिर्फ उस लड़के का फोटो टांग देना आपकी फिल्म में। एक लड़की जो आके बोलती है मुझे दिन में 18 से 20 लड़के ने मुझे रेप किया है, ये सारे कैसे झूठ हो सकता है, कैसे प्रोपेगेंडा हो सकता है? मैं तो मेरी मन से तो एक भी शब्द नहीं बोला ना। आप अगर फिल्म देखे हैं, मैंने 3 लड़की की कहानी बोला, ये 3 को साइंटिफिकली बोलते हैं केस स्टडीज। मेरे पास 500 लड़की की टेस्टिमोनियल है, एक फिल्म में मैं 500 लड़की की टेस्टिमोनियल डाल नहीं पाऊंगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनमें से केस स्टडी पिक करना पड़ेगा, एंड मैंने वही किया।
यहाँ पे ना 3 का संख्या इंपॉर्टेंट है ना 30,000 की संख्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है जो टेरर नेटवर्क कासरगोड, कोईकोर, मल्लापुरम में चल रहा है। ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सीपीएम पेट्रियार की वीएस अच्युतानंदन चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोल के गए कि केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। आप बताइए कि ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मैं एक फिल्म के जरिए बोला, क्या गलती कर दी है मैंने? उन्होंने क्या आरएसएस बीजेपी की प्रोपागेंडा कर रहे थे? बीएसएस अच्युतानंदन सर नहीं कर रहे थे ना। वो देश की एक ट्रू नेशनलिस्ट की तरह बात की थी कि केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। मैं उन्हीं की बातों को एक्सटेंड करके फिल्म में लेके आए। यूरोप का हालत देखिए ना सर, आज के वजद साहब, आज के तारीख में यूरोप का क्या सीन है? यूरोप टिकेगा कि नहीं मालूम नहीं। इस्लामिक टेररिज्म इस दुनिया की सबसे बड़ा थ्रेट है, इसके साथ रिलीजियन का कोई रिलेशन नहीं है सर। तो कहने का मतलब ये हुआ जो आप अभी बता रहे हैं सुदीप्तो सेन साहब, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, and Pradeep ji himself is from Kerala, so he is very familiar. I know Pradeep ji. He's very familiar with what is going on over there. But here, कहने का मतलब ये हुआ that in India we are willing to accept that the ISIS exploited Yazidi women in the same manner that you are talking about. But you are not willing to accept that they exploited Hindu, Muslim and Christian girls from Kerala. ये क्या डायकोटमी है मेरी समझ के बारे सर? ये लोग एक इतना रिएक्शनरी की तरह डील कर रहे थे। ये इट्स नॉट अ जोक जी, इट शुड बी सीन अपन। प्रदीप जी आप बताइए कि केरल मतलब मैं मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट बना कैसे? आप आर्टिकट, मल्लापुरम के आर्टिकट के बारे में जानते हैं जी? वहाँ पे दैट आर्टिकट इज नाउ रन बाय द शरिया लॉ। एग्जैक्टली बंद हो गया वहाँ की ये बार्बर शॉप बंद हो गया, वहाँ पे कोई टेलीविजन चैनल नहीं चलता है। आप बोलिए आलापुरा की, प्रदीप जी आलापुरा की रास्ते में आके एक छोटे बच्चे भाषण ये स्लोगन दे रहे थे कि हिंदू और क्रिश्चियन तुम्हारी 6 फीट नीचे कब्र हमने खोद के रखे। वो वीडियो हमने जारी किया था, प्रदीप जी आपने देखा है वो? बिल्कुल। ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है केरल की सोसाइटी की, एक बड़ा सुंदर केरला में मलयालम लैंग्वेज में बजाज साहब मैंने फिल्म बनाया। 2 केरला एग्जिस्ट करता है बजाज साहब जी। एक कोची के ऊपर जो नॉर्दर्न केरला है जी, एक कोची के नीचे जो साउदर्न केरला है। साउदर्न केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, पिक्चरस्क लैंडस्केप, ब्यूटीफुल वाटर, समुंदर, हरे भरे ग्रीन। आप नॉर्थ में चले जाइए, सिर्फ डार्क ही डार्क दिखेगा। और वहां की जो रियलिटी है, वहां पे जो अरब से पैसा आता है, आप बताइए एनआईए के पास 103 केसेस पड़ा है सर। मैं तो चलो 32,000 का नंबर बोला, वहां के लोकल लोग बोलते 50,000 से ज्यादा लड़कियां घर छोड़ के चले गए। कोई ऐसा नहीं है कि सब सीरिया यमन गए हैं, सब घर छोड़ के चले जाते। जब रेडिकलाइजेशन हो जाते हैं वो लड़कियां घर पे रहते नहीं है। ये हमारी हर्षा विद्या समाजम की जो लड़कियां आई थी, वो लड़कियां बोल के गए कि इनकी रेडिकलाइजेशन कैसे होता है। Sir, Sen Saab, you're telling the right thing right in Kerala. In fact, the police investigations and many of the cases have, highlighted these things, but probably they were not allowed to go ahead after a certain point. I remember the Pakistan chief, Pervez Musharraf, in his book, In the Line of Fire, before he went out, exited, he talked about the sleeper cells prevalent, especially in Kerala and Tamil, the southern states he talked about, and highlighted Kerala and Tamil Nadu. Now Kerala is on a volcano. It's about to burst anytime. It will burst. Absolutely. And what you have done is just highlighted. But you got criticism for highlighting the truth. Now, when will the society really accept? Now, how do you feel it? Because you got a prime minister who believes the same ideology. Islamic आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है. Right when he was the chief minister of Gujarat, he had that focus in mind. The terrorism is coming from here. It has to be stopped. Now he's the prime minister. You share the same view. And now, why is it so difficult for people in the Congress, the Muslim leadership, to accept certain facts and take a corrective stand to improve things in the society? Where do you find the hindrance? Because you are a thinker also. Because the way we've seen you, you highlighted the problems, and there has to be solutions too. How do you think we can bring about a change, sir? Pradeep ji, you have to understand that I need not to tell how the government in Kerala forms. It has the answer.
So far Muslim vote used to go to Congress, so Congress was in power. Now Muslim vote is going to CPM, so CPM is in power. So everybody needs that pie, that the vote pie, and that is the problem, that the biggest crisis in this country. You are not allowed to talk about the country's interest when it comes to religion. कुछ लोग माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ लोग मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं. प्रॉब्लम वही है कि आप एक गरीब को रोटी देंगे ना, आपकी कोई आके बोलेगा जरूर आपका कोई एक मानसिक वो है कि आप गरीब को रोटी खिला रहे हो. बिल्कुल मत खिलाओ गरीब को रोटी. तो प्रॉब्लम क्या है कि आप holistically there is hardly any sense of nationalism, any sense of togetherness exists. It is all about your vote bank politics. लेकिन यहाँ पर सुदीप्तो सेन साहब, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपने हाईलाइट करी है, जो समस्या आपने दिखाई है, प्रदर्शित करी है अपनी फिल्म में, वो समस्या तो पूरे राष्ट्र की है ना सर, सबकी है. भले आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबकी है प्रॉब्लम. बौद्ध हो सर. आईसिस का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो सबसे ज्यादा तो उन्होंने मुसलमानों को तहस-नहस किया है. एकदम परफेक्ट. इराक और सीरिया में सबसे ज्यादा तो मतलब उनके विक्टिम जो रहे हैं मुसलमान रहे हैं. तो क्या इन लोगों को समझ में नहीं आता कि असल में हो क्या रहा है? मेरी समझ के बाहर है. व्हाई वुड द मुस्लिम्स सर्व एज अ वोट बैंक? मेरा सवाल ये है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की आपने बात करी, कि मुसलमान जो है अपने आप को अलाउ क्यों करता है कि मैं इस फला इस पार्टी का वोट बैंक हूं क्योंकि ये आईसिस के फेवर में बोल रहा है. अभी तो मुझे बजाज साहब, अभी तो मुझे वही लग रहा है, मेरी फिल्म को क्रिटिसिज्म करने के लिए पीपल आर नॉट हाइडिंग their love for the militant organizations. Yes. They are not understanding that by criticizing my film, they are actually supporting the militant, the radical forces. Yes. Who are active in the. आपको मालूम है, मैं तो मैंगलोर के बारे में बात नहीं की. Sir, I have the document of 17,000 girls missing from Mangalore. Mangalore is कसरगोड की एकदम adjacent, कर्नाटका का, साउथ कर्नाटका का पोर्शन. प्रदीप जी जानते हो. बिल्कुल, a little ahead of Kandur. मेरी कहना ये है कि it is not the question any. It is even यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, the conversion is a threat because ये conversion की जो पैटर्न है ना सर, बजाज सर, मैंने वही पैटर्न, पहले मुझे लगता था कि ये एक सिंपल लव और प्यार की बात है, दो एडल्ट सोल decided to get married, let them get married. लेकिन ये जो पैटर्न धीरे धीरे आए, एक इंडियननेस को, इंडियन हिंदुइज्म को एक पैटर्न के साथ डिस्क्रेडिट करना, रिडिक्यूल करना. आप देखिए हजारों वीडियो यूट्यूब में मिलेगा जहां पे बोलता है श्री कृष्ण कौन है, ये तो हर लड़की से मोहब्बत कर लेता है. शिव के बारे में बोलता है, अरे आप लोग एक पेनिस को एक बंदे की एक भगवान नाम देते हो, उसकी पेनिस को पूजा करते हो. ये वीडियो मेरी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन मैं मेरी फिल्म में आसमान से नहीं बोला. हजारों की वीडियो आप देखेंगे जो रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस चलता रहता है. ये जाकिर नायक के वीडियो आप देखिए. ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने पॉलिटिक्स में, ये लोग अपनी एजेंडा में सही जगह पे है. हम बांटे हुए हैं, हम हमारी इंटरेस्ट में ये सेकुलरिज्म के नाम पे. सुदीप्तो सेन साहब, आपके खुद के व्यक्तिगत विचार, हम इन लोगों की वही जाकिर नायक को सपोर्ट कर रहे हैं. कितना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गए. बजाज साहब, आप तो मेरी सीनियर है, आप लोगों को देख के हम लोगों ने मीडिया को जाना, आपकी कंट्रीब्यूशन मैं जानता हूँ. इंडियन जर्नलिज्म में कितने बड़े कंट्रीब्यूशन आपकी है. आप बताइए, आप लोगों ने देखा है कि कहाँ गए वो उस तरह वो एनर्जी इंडियन यूथ से, कहाँ गए वो अंडरस्टैंडिंग सोच जो ये डिस्टर्ब करे कि एक फिल्म को डिस्क्रेडिट करने से यू आर बेसिकली सपोर्टिंग दोज एलिमेंट्स लाइक जाकिर नायक. Now over here I would like to ask you one thing. This is very important because Pradeep ji and I were discussing this before we started the show. Is there a central command center which is coordinating these activities, or is this developing organically? कोई umbrella organization है कि अपने आप हो रहा है ये सब? Sir, in Kerala it is very bad. The situation is very bad, and I am telling you, ISIS has more than ये मेरी नंबर है, ये I can't prove. मेरे पास कोई
मैंने अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करके जुगाड़ किया, मोर देन 70,000 स्लीपर सेल मेंबर है आईसिस और तालिबान की इन केरला। जिस तरह सऊदी अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से जो पैसा आता है, आप जानते हैं एक छोटा सा जगह पे 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जिस तरह पैसा वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, जिस तरह पैसा सीरिया से, टर्की से आ रहा है, बहुत डेंजरस ट्रेंड है बजाज सर। और यहाँ पे जो स्लीपर सेल काम करता है, आप देखिए पिछले 4 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट सिंगापुर में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में और मलेशिया में, चारों की चारों केरल की लड़के थे जी। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये मैं कन्विंस्ड हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं कैसे प्रूव करूंगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज माय कन्विक्शन पिछले इतने सालों से काम करके। केरल में इतने ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो चुका है लोगों की, ये यंग माइंड से लेकर पॉलिटिकल लेवल पे, कि ये एक अगर एक सेंट्रलाइज्ड एफोर्ट नहीं लिया गया, एनआईए की तरफ से एक एफोर्ट नहीं लिया गया, एंड तो इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा बजाज सर। ये देश बहुत बड़ा क्राइसिस में है। ये अच्युतानंदन गलत नहीं बोला था, केरल 20 साल में सर सिर्फ केरल ही नहीं है, हो जाएगा सर सिर्फ केरल ही नहीं है। मैं अभी प्रदीप जी से बात कर रहा था, जैसे तमिलनाडु में इन चेन्नई देयर इज अ प्लेस कॉल्ड माइलापुर एज यू नो इज अ वेरी एलीट ब्यूटीफुल सोसाइटी ओवर देयर, इट्स अ लवली एरिया। जैसे मुंबई की मलाबार हिल है, आई नो सर। आपको मालूम है ना वहां पे क्या हो रहा है? All the Hindu houses are being bought by a particular community which is pooling their resources, and all the people are being slowly, steadily driven out. अब मेरा ये कहना है कि सर, अब इसमें whether we are all shouting wolf या क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहां पर आपने जो काम करना था व्यक्तिगत तौर पे आपने अपनी जिम्मेवारी निभाई है बतौर एक जिम्मेवार भारत के नागरिक और एक ब्रिलियंट प्रतिभाशाली फिल्म मेकर होने के नाते। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं सर? अब तो सरकार को एक्शन लेना है। आपको क्या लगता है सरकार एक्शन लेगी? मैं केरल को बहुत, प्रदीप जी बिलीव मी, मैं केरल को बहुत प्यार करता हूँ और मैं मानता हूँ इट इज गॉड्स ओन कंट्री, लेकिन इन लड़कियों को जब देखता हूँ ना, मुझे नींद उड़ जाता है कि ये लड़कियों ने क्या गुजरा है। बिल्कुल मैं मलयालम लैंग्वेज में मैंने फिल्म बनाया, मेरे अंतिपोनोवेट्टम आपने सुने होंगे नाम। मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब इस जगह पे जाता हूँ ना, ये कोयिकोड, मल्लापुरम, ये सब कासरगोड, मुझे डर लगता है कि क्या है, क्या मतलब ये हम क्या नहीं देख पा रहे? ये पॉलिटिकल लीडर्स इतने अंधे हो गए, वो घोड़े की जैसे यू मीन दी ओल्ड जो मोपला रिबेलियन के वक्त, जो मोपला राइट्स जब हुए थे, effectively the same thing is continuing now. Even at that time Gandhi ji said कि यार इसके बारे में सच मत बोलो, चुपचाप रहो। कहने का मतलब ये हुआ। And since you know, and that's on record. Extension of what Pradeep ji, that's on record by the way. बिल्कुल जी। And आज जो राहुल गांधी जी, you know, when he went to US, और जो उन्होंने कहा कि Indian Muslim, the Muslim League is secular. Now what I'm trying to say, there's the resistance for accept the facts. जो facts है, जो हकीकत है, जो society में divide है, you got Pervez Musharraf also saying that there is sleeper cells out there in Kerala, and now your film and various other things, ground realities. Why the resistance to accept these facts and find out, you know, to rectify the errors is because of leadership, where you accept that Muslim League is secular. This kind of statements, do you think, which the RSS and VHP and the BJP says, is a wrong statement to say? You're encouraging this trend, you're giving more fuel to those people who want to create this kind of crisis. Do you think leadership has to play a role, sir? Sain sir, and every leadership from irrespective, every political party will have to accept the truth and talk on those lines. How do you see, sir? Sir, I completely agree, and NIA at times shows lot of proactiveness. They pick up many cases, almost 103 cases I can count that they have picked up. There are many serious cases are there, but at the same time, the guy who has radicalized this girl in my film, who is the Fatima, that guy is moving free. Nobody, in spite of having so many proofs against this guy, not a single police, neither from Kerala police nor from NRI, अरेस्ट तो दूर की बात है, इंटरोगेट तक भी नहीं की उस लड़के को, खुलेआम घूम रहा है,
धमकी दे रहा है उस लड़की की माँ को जो अभी अफगानिस्तान की जेल में है। तो मेरी मेरी ये जो एक ये जो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की एक अजीब दास्तान है ना, कि कभी एनआईए को लगता है कि दे विल सॉर्ट आउट प्रॉब्लम इमीडिएटली एंड विथ ऑल माइट, but at a point of time we see that I see very helplessness around. I see that there are real cases needs to be interrogated again and again. I feel that why V.S. Achyutanandan was not been interrogated, that आपके पास information कहाँ से आया कि 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। कोई ना एक चीफ मिनिस्टर है, सीपीएम की पेट्रियार्क है, कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना उनके पास ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए। एनआईए उनको तो कभी नहीं पूछा। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा दलदल में फंसे हुए सिचुएशन लगता है मुझे। सुदीप्त सेन साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक हम लोग उस जो एक हाउ शैल आई पुट इट नेहरूवियन डू नथिंग पॉलिसी जो एक चल रही थी अभी तक, उसके हम लोग शायद बाहर नहीं निकले। लेकिन आपने तो अपना काम कर दिया है माशाल्लाह। सर मुझे ये लगता है कि हमारी देश मतलब जो नया भारत की बात कर रहे हैं, हमने 75 साल आजादी की बात कर रहे हैं। वक्त लगेगा। ये जो इश्यूज है ना, ये इश्यूज हमें वो खुलेआम सेलिब्रेट करने की मौका नहीं देते, क्योंकि आई हैव सीन द पेन, द टीयर्स। एक सोचिए, एक घर में 12 लड़की जो मुसलमान बन गए थे फिर दोबारा हिंदू बनी, वो लड़कियों की घर की बिजली काट दिया जाता है। वो लोग मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, रास्ते में उसका सब्जी की बैग छीन लिया जाता है। 3-3 दिन 4-4 दिन वो लड़कियां खाना नहीं खाई। एक लड़की रिकन्वर्टेड हो गई, उसका गांव में उसका घर जला दिया गया। तो ये सारे सुनने के बाद आपको नहीं लगता है कि हमें सीरियस रीजन है? मैं सिनिकल नहीं होना चाहता कि दिल्ली में एक लड़की को 32 टुकड़े करके वो सूटकेस में भर दिया, फ्रिज में भर दिया। चलो मैं ये सारे एक लार्ज 140 करोड़ लोगों की एक एबरेशन मान सकता हूं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन है जिससे आप समझ रहे हैं, आप प्रदीप जी, आप बजाज सर, आप लोग अलग अलग, आप लोगों की एक्सपीरियंस मेरे से 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा है। आप लोग समझ पा रहे हैं, एक सरकार क्यों नहीं समझ पा रहे? सर ऐसा है, मुझे लगता है कि आपकी फिल्म की वजह से एक दरवाजा खोला गया है। दरवाजा नहीं, खिड़की खोली गई है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यू हैव, आपने रोशनी डाली है किसी चीज के ऊपर। अब उसके ऊपर आगे कैसे एक्शन होता है, मुझे ऐसा लग रहा है वेरी फ्रैंकली, जो जानकारी हम लोगों के पास है, एक्शन होगा और इस तरीके से एक्शन होगा कि सारी दुनिया तहलका मच जाएगा सारी दुनिया में कि ये क्या हो गया। वेरी फ्रैंकली वो होना भी चाहिए। बट दैट, बाय द वे, लेट मी एश्योर पीपल, इज नॉट मिस्टर सुदीप्तो सेन's responsibility. Let's be very clear. Mr. Sudipto Sen has fulfilled his responsibility as an Indian citizen and as a brilliant filmmaker. Once again, congratulations to you. Thank you so much, sir. And चलते चलते सर ये तो बताएं, my former boss and elder brother, and I still love him, Mr. Subrata Roy, सारा श्री, उनके ऊपर आप पिक्चर बना रहे हैं सर, जबरदस्त। मेरा ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अभी मैं स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया जी। मतलब अभी डेट्स वगैरह फाइनल नहीं हुआ, मैं अगले 2-3 दिन में उनसे मिल रहा हूँ और बहुत जल्दी सारे डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शाहरास्त्री से पहले मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म बनाने जा रहा हूँ। बजाज सर, आपको मैं जल्दी बताता हूँ उसके बारे में। तो उसके बारे में अभी बता दीजिए ना सर, अनाउंसमेंट तो करेंगे, या आप तरन आदर्श का आप इंतजार करेंगे कि वो अब ट्वीट करेगा, उसके बाद सारी दुनिया को? मैं एक्चुअली बस्तार के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ। किसके ऊपर सर? बस्तार के ऊपर। अरे लवली, ओवर द रेड कॉरिडोर। हाँ, ओवर द रेड कॉरिडोर। शाबाश। तो जल्दी तो मतलब आपको शौक है बड़ा, आपको शौक है बड़ा बिच्छुओं के बिल में अपना हाथ डालने का। सर आप लोगों से सीखा, आप लोगों से सीखा। आप भी बहुत बिच्छुओं के साथ खेले हैं, तो इतने दिन से आपकी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, मुझे मालूम है कितने दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी शो देख रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच सर, बट रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, Mr. Sudipto Sen, and congratulations once again on a wonderful film. Absolutely and truly fantastic. And by the way, this is strictly my opinion and also Advocate Pradeep Nambiarji's opinion, and I am willing to be challenged anywhere in any court of law. What Mr. Sudipto Sen has shown in his film, by the way, is not even 0.1% of the real story. The real story is so awful that we can't even talk about it.
in a public forum, because that would lead to God knows what. But I hope the NIA takes action on this, and they take swift action. Otherwise, in another 5 years, it just might be too late. Mr. Sudipto Sen, thank you very much for joining us on the show. So nice of you. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar, sir. Vande Mataram. Very, very. Vande Mataram. God bless you, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you very much. That was lovely. And